हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको द वर्ल्ड पॉपुलेशन के थर्ड पार्ट को आगे बढ़ाते हुए पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन. For example, this is the region and how many people are residing in this particular region is what is called population density. The question arises that why there is a need to calculate population density. Population density is calculated in order to know the progress of that region and to make future plans for the social, economic and cultural progress of that region. Therefore, population density is calculated, and population density of any of the world is 47 persons per square kilometer. It varies from place to place. For example, Singapore has a highest population density of 7,797 persons per square kilometer, whereas there are areas which have very low population density such as the Sahara Desert area, Mongolia, Siberia, Greenland. इसमें population density is 1 persons per square kilometer. Therefore, population density is calculated in order to know the progress of that region. Now we will talk about the types of population density. There are 5 types of population density. First of all, we will talk about the mathematical density. Mathematical density is the ratio of the total number of human population upon the region. For example, this is the region and how many people are residing in this particular region is mathematical density. Second comes the economic density. Economic density is that what are the resources that are available in this region and how many people are residing in this region is called economic density. Economic, for example, यहाँ बहुत से resources हैं और बहुत से resources हम extract नहीं कर रहे हैं, productive नहीं है, they are of no use, वो reserves में पड़े हुए हैं, तो that is not taken into consideration. जो resources productive है उनको हम लेते हैं upon the total population is then economic density is calculated. Therefore, economic density is population upon resources. मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले ले so that you have complete notes. The third density is the physiological density or the cultivated area density. The land that is used for agriculture and the people that are residing in that region is what is called physiological density. Physiological density is population upon the cultivated area. Next we come to the agricultural density. What is agricultural density? The area of land that is used for agriculture and the people that are residing in that region is what is called agricultural density. Therefore, agricultural density is population engaged in agriculture upon the area of land under farming. Other population is not considered, but the population that is engaged in agriculture is taken into consideration in agricultural density. Lastly, we will talk about the nutritional density. Nutritional density is the area of land producing food crops and the total number of people residing in that region is nutritional density. Population upon the area of land producing food crops. Therefore, we have discussed all the 5 types of all the 5 types of population density on which is used for calculating the progress. अब हम लोग बात करते हैं distribution of the population density world में क्या है. ये population density is not at all evenly distributed है. जिस तरह से वर्ल्ड की population was not at all evenly distributed, वैसे ही population density is also not evenly distributed in the world. High population leads to high population density. Singapore has a very high population density of 7,797 persons per square kilometer, and there are areas which have very low population density such as Mongolia, Siberia, Sahara, which has less than
1 person per square kilometer. Therefore, density of population is high in those areas where there are facilities, more modern technology है, तो इसलिए population density is also high in that areas. Now we will talk about the population density of the world continent wise. Asia में 116 persons per square kilometer, whereas in Europe it is 32 persons per square kilometer. Africa is 29 persons per square kilometer. North America registers a population density of 16 persons per square kilometer, whereas South America में 20 persons per square kilometer. Oceania में only 3 persons per square kilometer. Now we will talk about the low densely populated areas. Sahara, Greenland, Siberia, Mongolia, they have less than 1 person per square kilometer, which is due to the adverse climatic conditions. Here they are very cold and hot climates, therefore people don't like to reside over here. They move to the areas where they have more facilities, more modern technology is there. Therefore, people like to reside over there, and there is lack of population in these areas. मैं side हो जाती हूँ. You take a screenshot so that you have complete notes. On the basis of world population density, world is divided into 5 main regions. ठीक है? Which are firstly the very high population density areas. ये वो एरियाज है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर देन 250 persons per square kilometer. If this is the area है ना, 1 square kilometer एरिया है, इस पे more than 250 persons per square kilometer पे रहते हैं, तो that will come under the category of very high population density areas. ये वो एरियाज है जहां we have earlier talked about the agglomerations, population agglomerations की बात हम लोग की थी. 4 agglomerations की पहले वाले उसमें वीडियो में हमने बात की थी. पॉपुलेशन एग्लोमरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द एशियाटिक एग्लोमरेशन की बात की थी. एशियाटिक एग्लोमरेशन इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एग्लोमरेशन, जिसमें हमारा ईस्टर्न एशिया एज वेल एज साउथ ईस्टर्न एशिया आ रहा था. साउथ ईस्टर्न एशिया में आपका हो गया चाइना, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका. ऑल दीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है. ये सारी एग्रीकल्चरल कंट्रीज है, यहाँ पे एग्रीकल्चर फ्लरिश करती है, एक्सेप्ट जापान. जापान इज नॉट एन एग्रीकल्चरल कंट्री. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई, बहुत अच्छी रिवर वैलीज है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट इज ऑल्सो वेरी गुड. All these things, geographical conditions, economic factors, all these things are favorable for the growth of population. Therefore, there is a population agglomeration in the Asiatic part of South and Southeastern Asia. ठीक है. Next we come to the next agglomeration, that is the European agglomeration. This is the newest agglomeration and the second agglomeration of the world. ये कौन सा है? वेस्टर्न और मिडिल पार्ट ऑफ यूरोप. तो इसमें ये एग्लोमरेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके. नेक्स्ट एग्लोमरेशन की बात करते हैं, दैट इज द अमेरिकन एग्लोमरेशन. एंड अमेरिकन एग्लोमरेशन ये सबसे नया है. दिस इज माइग्रेशन फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज से जो माइग्रेट करके लोग आए थे, वो इस नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिकन में आके सेटल अप हो गए. कौन कौन से एरियाज हो गए? नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसमें वो रीजन्स इंक्लूडेड हैं. ठीक है. फॉलोड हो गया 3 एग्लोमरेशंस इंक्लूडेड हो गए. फर्स्ट ऑफ ऑल द एशियाटिक एग्लोमरेशन हो गया, दूसरा हो गया आपका यूरोपियन एग्लोमरेशन, थर्ड इज द नॉर्थ अमेरिकन एग्लोमरेशन. ठीक है. ये सब वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज में आ गए. ठीक, जो कि 250 more than and 250 and more than 250 persons per square kilometer एरिया की इनकी डेंसिटी है. ठीक है. नेक्स्ट रीजन इज द रीजन्स हैविंग
high population. This is very high population density and this is high population density. ये वो एरियाज है जिसमें ये 1 किलोमीटर के एरिया में 100 to 200 persons पर स्क्वायर किलोमीटर मिलेंगे. यहाँ मोर देन 250 पर्सन हो गए पर स्क्वायर किलोमीटर. यहाँ पे 100 to 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो गए. कौन कौन से हो गए? सदर्न यूरोप, ठीक है, साउथ ईस्ट यूरोप, कोस्टल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ एशिया, साउथ वेस्ट चाइना एंड मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया. मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया से हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करवाती हूं मैं. पहले भी मैंने बताया था जो गंगा यमुना प्लेन हो रहा है, द ब्रॉड बाय द रिवर गंगा एंड यमुना राइट फ्रॉम द हिमालयाज आ रही हैं ये, और टुवर्ड्स फ्लो करके ये वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में, कोलकाता में जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है. ठीक है, दिस प्लेन इज वेरी फर्टाइल, है ना. यहाँ पे प्लेन्स एरियाज है, टेरेन भी अप्रोप्रिएट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी सुटेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स हो रही हैं, एग्रीकल्चर यहाँ फ्लरिश करता है, देयरफॉर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी फेवरेबल है, पीपल लाइक टू रिसाइड यहाँ पे, लेबर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज हैव ऑल्सो कम, एजुकेशनल फैसिलिटीज ऑल्सो राइज हो गए. तो यहाँ पे दीज आर द रीजंस. इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो गए, आपके सोशल कल्चरल फैक्टर्स, यहाँ कोई सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं होता है, देयरफॉर पीपल टेंड टू एग्लोमरेट इन सच रीजन्स. तो यहाँ पे ये सब फैसिलिटीज है, देयरफॉर इंडिया के जो मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे हमें पॉपुलेशन एग्लोमरेशन मिलता है, या पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आगरा है, आपका इलाहाबाद है, कानपुर है, बनारस है, आपका कोलकाता है, ये सारे एरियाज आए, ये सारे सिटीज आ रहे हैं आपके इसी लाइन में. तो यहाँ पे क्यों पॉपुलेशन है? बिकॉज ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना. ये डेंसिटी इसीलिए हाई है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया में आते हैं जिसको कहते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया. ये उसमें अभी तो हम लोग ने वेरी हाई में हुआ 250 एंड मोर देन 250. ठीक है, नेक्स्ट रीजन में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी वाले रीजन्स हो गए बिटवीन 100 to 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. एंड थर्डली जो नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी वाला हो गया वो है 10 to 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. दैट मीन्स इस एरिया में 10 to 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं. मैं साइड हो जाती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट यू हैव कंप्लीट नोट्स. हम लोग नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज की बात कर रहे थे. यहाँ पे वो एरियाज है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी इज बिटवीन 10 to 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. तो एरियाज कौन कौन से हो गए जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी इज सो लेस? तो ग्रासलैंड्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये वो प्लेसेस है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी इज बिटवीन 10 to 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, फिर नेक्स्ट बारी आती है लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज. लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज में क्या हो गया? 6 to 10 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर पे मिलेंगे आपको. ठीक है, तो एरियाज कौन कौन से हो गए जहां पे इस तरह के 6 to 10 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर? वो हो गया सूडान, लिबिया, नॉर्थ अर्जेंटीना एंड गल्फ कंट्रीज इन एशिया. गल्फ कंट्रीज इन एशिया के बारे में मैं एक बात भी बताना चाहूंगी कि आपने भी देखा हो गल्फ कंट्रीज में कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, केवल रेत ही रेत है. एंड एक मिनरल रिसोर्स है उनके पास, दैट इज पेट्रोल. मिनरल रिसोर्सेज दैट इज पेट्रोल. इस पेट्रोल जो कि ब्लैक गोल्ड, मार्क जेफरसन ने बड़े राइटली इसको कहा है, पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड. ब्लैक गोल्ड इस ब्लैक गोल्ड की वजह से वो उनके यहाँ अक्सर कर युद्ध होते रहते हैं. ठीक है, वॉर होती रहती है. एंड इस प्रिविलेज्ड उसमें ये लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन बहुत अमीर भी हो गए हैं, यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, 6 to 10 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर आपको मिलेगा. क्यों? एडवर्स कंडीशंस है.
रेत होती है, मतलब सैंडी सैंड, जहां तक दूर तक देखेंगे सैंडी सैंड है, पानी की बहुत कमी है, तो कि क्या है वहां पॉपुलेशन डेंसिटी 6 to 10% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लास्टली वी विल टॉक अबाउट दैट इज वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज। तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी इज लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1% पर स्क्वायर किलोमीटर तो ऐसी जगह पे होगी जहां पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, जहां एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, जहां ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बड़ी मुश्किलें होती हैं, वो ऐसी प्लेसेस है। तो ऐसी प्लेसेस कौन सी हो गई? पहली बात हम लोग ने आपको पहले भी बता चुके, ये हो गया मान लीजिए ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये नॉर्थ पोल हो गया। नॉर्थ पोल के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं वो आइस फ्रोजन रहती हैं, 9 मंथ्स तक वहां पे फ्रोजन, उनकी वहां की जमीन फ्रोजन रहती है। ओनली 3 मंथ्स के लिए समर सीजन होता है। तो क्या होता है, तो वहां पे इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो एस्किमो जाति, सामुइड्स, याकुट्स, तुंग ट्राइब्स रहती हैं, ये वो है कंट्रीज अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड हो गया। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गया, एज वेल एज रशिया का जो अपर पार्ट है उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ साइबेरिया। यहां पे भी हमेशा कोल्ड वेव्स बनी रहती है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है। देयरफॉर क्या होगा, यहां पे बहुत लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर इफ वी टॉक अबाउट द थार डेजर्ट, हमारे जितने भी क्या कहते हैं आपके हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स, यहां पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है। मैं अपने थार डेजर्ट के बारे में इंडिया में बात करना चाहूंगी। तो आप जैसलमेर की एरिया की तरफ देखेंगे दूर दूर तक आपको कोई पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम लोग दिखाई देंगे, बिकॉज ऑफ द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। ऐसी लेह लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है, वहां पे भी आपको दूर दूर तक लोग नहीं दिखा, पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लो। तो मैं साइड हो जाती हूं। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छा लगा हो।